উপস্থিত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এবং কলকাতার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুদের প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আপনাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় আরও অন্য জায়গায় আপনাদের যাওয়ারও থাকে, প্রচুর চাপ থাকে, তারপরেও যে আপনারা সময় বার করে আমাদের এই প্রোগ্রামে এসেছেন তার জন্য আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, চিরকৃতজ্ঞ থাকব। বন্ধু, আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, তার মূল কারণটা আমি বলার আগে আমি একটু আপনাদের সঙ্গে দুটো কথা শেয়ার করি, যারা আমরা কারা কারা এর মধ্যে উপস্থিত হয়েছি। তো আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের সবারই পরিচিত, আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় গুরুজি ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষু, কালীগঞ্জ বৌদ্ধ সমিতির অধ্যক্ষ, উনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সারা ভারত মাইনরিটি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান জনাব ফরিদ খান সাহেব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সুফিয়া খান, বিশিষ্ট সমাজসেবী, সুফি ইউনিটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কাম ফাউন্ডার। আমাদের মধ্যে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স থেকেও ডেলিগেটস এসছেন, নামগুলো মোহাম্মদ আকরাম, চেম্বার অফ কমার্স থেকে আমাদের এখানে রিপ্রেজেন্ট করছেন উনি, এবং সর্দার গুরুচরণ সিং শরণ, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী কলকাতার, উনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। আমাদের মহিলা ফাউন্ডেশন থেকে এসছেন আইবি খান, ওনাকেও স্বাগত জানাই। এবং আমাদের মধ্যে থেকে আরও অনেকেই গেস্ট অতিথিরা এসছেন। আমাদের অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসের রাজ্য সভাপতি সুভাষিস গুহ এবং ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি ইকবাল আহমদ সিদ্দিকি এবং আমাদের প্রফেসর সোমা মুখার্জি, আমাদের মধ্যে অনেকে এসছেন, অনেকে এসে পৌঁছাচ্ছেন। আমি আবার আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আপনারা আপনাদের বহুমূল্য সময় দিয়েছেন। বন্ধুগণ, আজকে আমরা সমবেত হয়েছি, আমাদের মধ্যে আমাদের বিশেষ আজকে বক্তা এবং অতিথি আমাদের গুরুজি ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষু, ওনাকেই আমরা সামনে রেখে আজকে আমরা এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছি। আমাদের মূল বক্তব্য আমরা প্রেস বার্তার মাধ্যমে আপনাদের সবাইকে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে সামনে আমাদের ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। আপনারা ভাববেন যে আমরা নির্বাচন সংক্রান্ত কথা বলছি, তার মানে বোধহয় আমরা রাজনৈতিক দল থেকে বিলং করি, এরকম কিন্তু না। আমরা সকলে কিন্তু রাজনৈতিক দল থেকে বিলং করি না, এক দুজন রাজনৈতিক সমর্থক কর্মী আসেন, কিন্তু আমরা অনেকেই রাজনীতির আশেপাশে নেই। আজকে আমরা সমবেত হয়েছি একটা বিশেষ বার্তা নিয়ে, যেহেতু পশ্চিমবাংলায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলাতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধর্মকে নিয়ে নানান ধরনের একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করার একটা চক্রান্ত কিছু সাম্প্রদায়িক শক্তি করছে। এবং বর্তমানে আমাদের বিগত 10 বছরে যেই সরকার আমাদের বর্তমানে আছেন, যা সরকারের আমাদের নেত্রী বাংলার নবরূপকার মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দীর্ঘ 10-11 বছর ধরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার চলছে, এবং তার নেতৃত্বে সেই সরকারের সুফল, সেই সরকারের সমস্ত ব্যবস্থাপনা মানুষের সাথে গ্রাসরুট লেভেলের প্রত্যেকটা মানুষ আজকে খুশি, তাদের জনমোহিনী নানান ধরনের প্রকল্পতে মানুষ খুশি। স্বাস্থ্যসাথীর মতন একটা বিরাট বড় ব্যবস্থা, যেটা ভারতবর্ষে অন্য কোথাও নেই। একটা মানুষ অভাবে 10,000 টাকাও অনেক মানুষের কাছে থাকে না, 5,000 টাকা থাকে না, গ্রামে গঞ্জে 1,000 টাকা দিয়ে চিকিৎসা করার ক্ষমতা থাকে না, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পড়ে মারা যেত। আজকে সেখানে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে ওনার এক বিরাট স্বপ্ন ছিল মানুষকে, গরিব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে উনি স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প উনি শুরু করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা একজন সাধারণ গরিব মানুষ 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুবিধা পেতে পারে তার স্বাস্থ্যজনিত। আপনারা সকলেই জানেন। এবং লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে শুরু করে, রূপশ্রী থেকে শুরু করে, কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা বিষয়ে
আজকে সাধারণ গরিব মানুষ, অসহায় মানুষরা আজকে দুটো সাহায্য সরকারের থেকে পেয়ে, যেগুলো আগে আমরা কোনোদিন শুনিনি, ভাবিনি। আমারও যে বয়স হলো, আমরাও বামফ্রন্টের সময় দেখেছি, এর আগের সরকার দেখেছি, অন্যান্য রাজ্যের সামনে আমাদের ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আরও অনেক রাজ্য আছে, সেখানে আমরা দেখছি সরকার কীভাবে চলছে। এবং আমাদের পশ্চিমবাংলায় এই কিছুদিন আগে একটা রেকর্ড বেরিয়েছিল পেপারের কোনো মিডিয়া হাউস থেকে, সেটা অল ইন্ডিয়া লেভেলে এবং সারা ভারতবর্ষের, তাতে দেখা যায় ক্রিমিনাল ক্রাইম গ্রাফ পশ্চিমবাংলায় অন্যান্য রাজ্যের সবারই তুলনায় কম, সবচেয়ে বেশি ইউপিতে। তো আমরা সব দিক দিয়ে শান্তিতে আছি, ভালো আছি। এই বার্তা আমরা ভবানীপুরবাসীর কাছে দিতে চাই যে আপনার আগামী আসন্ন উপনির্বাচনে আপনারা আপনাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন এবং প্রচুর প্রচুর বিপুল ভোটে জয়ী করুন, যেটা একটা রেকর্ড দাঁড়ায়। এবং ভারতবর্ষে আগামী দিনে আমাদের ভারতবর্ষের সারা ভারতকে আমাদের পশ্চিমবাংলা থেকে নেতৃত্ব দেবে। তাই আমরা আমাদের অশেষ বিশ্বাস যে এই সারা ভারতবাসীর কাছে আগামী দিনে আমাদের নেত্রী, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষকে দিশা দেখাবে। তার জন্য আমাদেরকে এখন থেকেই সেই জন্য লেগে যেতে হবে, ওনার সাথে থাকতে হবে, ওনার পাশে থাকতে হবে। আমি আমাদের প্রধান বক্তা, প্রধান অতিথি, আমি ডক্টর অরুণজ্যোতি ভিক্ষুর কাছে মাইকটা এগিয়ে দিচ্ছি, উনি কিছু বলবেন। ধন্যবাদ আমাদের মাননীয় বোম্বা মুখার্জি মহাশয়কে। আপনারা জানেন যে গত পরশুদিন আমরা পশ্চিমবঙ্গের সকল ধর্মের ধর্মগুরুরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়ার ভবানীপুর উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ের আশায় আমরা সর্বধর্ম প্রার্থনা এই প্রেস কনফারেন্স আমরা করেছিলাম। আজকে আমাদের বিভিন্ন এনজিও, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা মানুষের জন্য বিভিন্ন দুর্দিনে পাশে থাকে, সেই সকল সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে এখানে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল ভোটে জয়লাভের জন্য আমরা এখানে এই প্রেস কনফারেন্স করছি। যারা সাংবাদিক বন্ধুরা বিভিন্ন হাউস থেকে এসেছেন, আপনাদের সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের মাননীয় ফরিদ খান সাহেব, আছেন সুপিয়াজি, আছেন আকরাম ভাই, আছেন আমাদের সর্দারজি এবং আপনার বিভিন্ন বন্ধুরা যারা এসেছেন। পরশুদিন আমরা যে প্রোগ্রামটা করেছিলাম, আমাদের বোম্বাদা বলেছেন যে আমরা ধর্মগুরুরা যে কাজটা করেছিলাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ বিদায় এই কাজটা করেছিলাম, কারণ তিনি সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে একসাথে চলার পক্ষপাতী এবং সবার জন্য তিনি চিন্তা করেন। সাথে সাথে আজকের যে আয়োজন, এটা হচ্ছে বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন এনজিও আজকে এখানে আমরা মিলিতভাবে তার জয়ের জন্য আপনাদের সকলের মাধ্যমে ভবানীপুরবাসীকে আমরা অনুরোধ করতে চাই। কারণ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছেন পশ্চিম বাংলার মধ্যে, সেই বিষয়টা আমাদের বোম্বাদা মাননীয় বোম্বা মুখার্জি যিনি কিছুটা আলোকপাত করেছেন। আপনারা জানেন যে তিনি যেমন ইমাম ভাতা থেকে পুরোহিত ভাতা দেন, তেমনি ভাবে শুধু ধর্মগুরুদের জন্য নয়, আমাদের সাংবাদিক বন্ধু থেকে শুরু করে কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে সকলের জন্য তিনি ভাবেন। এবং তিনি সকল ক্লাব ভিত্তিক যারা বিভিন্নভাবে খেলাধুলা করে বা বিভিন্নভাবে সোশ্যাল কাজ করে, সে ক্লাবকে বিভিন্ন ক্লাবকে অনুদানের মধ্য দিয়ে তিনি কাজ করে থাকেন। আপনারা জানেন যে দুর্গাপূজা যখন হয়, অনেকে তাকে হিন্দু বিরোধী বলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, কিন্তু আপনারা জানেন দুর্গাপূজা যখন হয়, সেই দুর্গাপূজা যেগুলো ছোট ছোট ক্লাব রয়েছে তাদেরকে তিনি আর্থিকভাবে সরকারের সহায়তা করেন দুর্গাপূজাগুলো ভালোভাবে করার জন্য, মা দুর্গার আরাধনা করার জন্য। তেমনি ভাবে তিনি যখন বিভিন্ন আমাদের মুসলিম বন্ধুরা রয়েছেন, যখন আমাদের রমজান মাস চলে, রমজান মাসে ইফতার পার্টি তো আমাদের কলকাতা কর্পোরেশন থেকে শুরু করে ইফতার পার্টির ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন জায়গায়। আমাদের বুদ্ধ পূর্ণিমার সরকারি ছুটি তিনি দিয়েছেন এবং বুদ্ধ পূর্ণিমাতে তিনি আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানান আসেন। তেমনি বড়দিনও আসেন, গুরু নানক জয়ন্তীতেও আসেন, তিনি আমাদের মহাবীর জয়ন্তীতেও আসেন। প্রত্যেকের সাথে মিলেমিশে থাকার যে বার্তা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রশাসন দেন,
এবং প্রত্যেকটা এনজিও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে যেভাবে তিনি আমাদের জন্য সকলের জন্য পাবেন। আপনারা হয়তো অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, বা বিজেপি বন্ধু বা সিপিএম এর বন্ধু বা কংগ্রেসের বন্ধু যারা আছেন তারা হয়তো বিভিন্ন কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে আমরা কি 100% পশ্চিমবঙ্গে ঠিক আছি? এই 100% যদি বলেন তাহলে আমেরিকা তো কেউ 100% ঠিক নেই, আমাদের দিল্লিতেও কেউ 100% ঠিক নেই। আপনারা দেখেছেন গতকাল আসামে যে বিষয়টা আপনারা দেখেছেন, এখন আমরা ধর্মীয় মানুষ বা আমরা এই বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য আসিনি, কিন্তু মনটা কেঁদে ওঠে যখন একটা মৃতদেহের উপরে পুলিশ গুলি চালায়। আমাদের মনটা কেঁদে ওঠে একটা মৃতদেহকে কিভাবে লাফিয়ে একটা ফটোগ্রাফার সাংবাদিক কিরকম মনের মধ্যে ক্রোধ রাখলে একটা ডেড বডির উপর এভাবে ঝাঁপাতে পারে, লাফাতে পারে, এভাবে মারতে পারে ডেড বডিকে, একটা যুবক ভাইকে। কি বিশৃঙ্খলা চলছে! সেই তুলনায় আমরা পশ্চিমবঙ্গে কত যে শান্তিতে আছি, কত যে ভালো আছি। আমরা যদি উত্তরপ্রদেশ দেখি, আমরা যদি আসাম দেখি, তাহলে আমরা যে পশ্চিমবঙ্গে কত ভালো আছি সেটা আমরা একবার নিজেদেরকে নিজেরা কোয়েশ্চেন করতে পারি, নিজেরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি যে আমরা মমতা ব্যানার্জির এই সরকারের আমলে 2-4টা ব্যতিক্রমী ঘটনা পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রান্তে ঘটে, আমাদের পশ্চিমবাংলায় ঘটছে, এবং এটা প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে প্রত্যেকটা নাগরিককে নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি সুইসাইড করব না আমি এই মুহূর্তে বোমবাদাকে ছুরি মারবো, সেটা তো কেউ বলতে পারে না। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ঘটছে, কিন্তু আনুপাতিক হারে সামগ্রিক বিচারে আমরা পশ্চিমবঙ্গে অনেক শান্তিতে আছি, অনেক ভালো আছি, অনেক প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ মিলেমিশে আছি। এটি আমাদের বিশাল একটা প্রাপ্তি। সেটা শুধু আমরা বলছি না, গত নির্বাচনে আমাদের বাংলার মানুষেরা আপনারা দেখেছেন কিরকম পরিস্থিতি ছিল, তার মধ্যে কিন্তু আমাদের 217 সিটে মুখ্যমন্ত্রী দলের এই জয় আমাদের সত্যি আশার সঞ্চার করেছে। 30শে সেপ্টেম্বর বিধানসভা, ভবানীপুরে বিধানসভার উপনির্বাচন। আমরা শুধু এটুকুই প্রার্থনা করতে হবে সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে আমাদের ভবানীপুরবাসীকে, এটা একটা এমন একটা জায়গা, ভবানীপুর আমাদের সর্দার যে আছেন, এমন একটা জায়গাকে মিনি ভারত, মিনি ইন্ডিয়া। কারণ এখানে সকল ধর্মের মানুষ আছেন, সে গুজরাটি, মারোয়ারি, বিহারি থেকে শুরু করে বাঙালি, প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ আছেন। শিখ থেকে, মারোয়ারি থেকে, পাঞ্জাবি থেকে শুরু করে, জৈন থেকে শুরু করে, হিন্দু থেকে শুরু করে, মুসলিম, বুদ্ধিস্ট সব ধর্মের মানুষ আছেন। একটা মিনি ভারত এই ভবানীপুর কেন্দ্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে বাই ইলেকশনে অনেকে ভোট দিতে যেতে চান না, অনেকে ভোট দেন না। আমি আশা অনুরোধ করব প্রত্যেকটা ভবানীপুরবাসীকে যে প্রত্যেকে নিজে নিজে ভোট দিন। আপনারা বাংলার এই শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের বাংলার সকলের দরদি, সকলের জন্য ভাবেন। আমাদের বাংলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মহাশয়কে ভোট দিন। একটা আমি একজন নাগরিক হিসাবে, ধর্মগুরু বাদ দিন, আমি একজন নাগরিক হিসাবে ভারতের আমি এটাকে অনুরোধ করছি সকলকে, কারণ এনাকে ভোট দিলে আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো। আমি বোমবাদা, পরিদ্দা, আমাদের সুপ্রিয়াদি সহ যারা আজকে আয়োজন করেছেন না, তাদের সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই একজন ধর্মগুরু হিসাবে, যে এটা আমাদের প্রত্যেককে এই আওয়াজ তোলা দরকার, এই ধ্বনি তোলা দরকার যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেন বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এই আশা জানিয়ে আপনাদের সকলকে আমি প্রার্থনা করছি ভগবান বুদ্ধের কাছে যে মমতা ব্যানার্জি জয় হোক, বাংলা শান্তি, সম্প্রীতি এবং ঐক্য আরো সুদৃঢ় হোক। ভবতু সর্ব মঙ্গলং, রক্ষন্তু সর্ব দেবতা, সর্ব বুদ্ধানু ধম্মানু সংঘানু ভাবেনা সদা শুদ্ধি ভবতু। ধন্যবাদ সকলকে। অনেক অনেক ধন্যবাদ গুরুজিকে। গুরুজি বক্তব্য শুনলেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, আমাদের সকলে খুব প্রিয় আমাদের বোন, সোফিয়া ফাউন্ডেশনের, হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কাম ফাউন্ডার সোফিয়া খান। আমি সোফিয়া খানকে বলবো কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यहाँ पर मंच पे उपस्थित जितने भी माननीय अतिथि हैं और आप सब जितने भी यहाँ फाउंडेशन के लोग हैं, जितने भी गैर राजनीतिक संगठन से जो भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर हम सब ममता बनर्जी के लिए अपील करने के लिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के लिए अपील करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जबकि मेरा यह मानना है कि ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है, ममता बनर्जी का जो काम है, उन्होंने जो ग्राउंड लेवल में जो ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से उन्होंने काम किया है 10 साल बंगाल में, उसके आधार पर 2 मई को पहले से ही बंगाल की जनता ने जवाब दे दिया है कि अगर बंगाल में कोई रह सकता है,
बंगाल की उन्नति अगर कोई कर सकता है तो वो केवल माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लेकिन चूंकि एक औपचारिकता है, चीफ मिनिस्टर बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनको इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन में लड़ने के लिए जाहिर सी बात है कि कैंपेनिंग भी करना है, लोगों से अपील भी करना है, लोगों से वोटों के लिए अपील करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री चूंकि अहंकारी नहीं है, अगर मोदी होते तो शायद उनको अहंकार होता कि वो बिल्कुल जीत रहे हैं और उनको किसी भी तरह का कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन दीदी चूंकि आम जनता के लिए हैं, आम जनता के साथ हैं, आम जनता के पास खड़ी रहती हैं, तो हर वक्त उनके काम को देखकर, जैसे कि हमने पिछले साल भी देखा किस तरह से कोरोना काल में जब बड़े बड़े लीडर्स बैठकर घंटी और ताली बजवा रहे थे, तो हमारी मुख्यमंत्री जो है हमारे बीच हमारे साथ खड़े होकर हमें सोशल डिस्टेंसिंग समझा रही थी, हमारे लिए खड़ी थी, हमारे लिए राशन बांट रही थी, या जो भी है हमें जिस तरह की जरूरत थी वो हमारे पास थी। तो ऐसे मुख्यमंत्री की हमें आवश्यकता थी, और हम जनता ने बंगाल की जितनी भी जनता जनार्दन ने ममता बनर्जी को चुनकर 200 से ज्यादा सीटों पर उनको हमने विराजमान किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितनी भी सीटें जीती हैं, जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी विधायक हैं, मैं उन सबको ऑनर करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जितने बंगाल की जनता है उन्होंने ममता बनर्जी के काम को देखकर, हर घर में हम जानते हैं कि कन्याश्री घुसा हुआ है, हर घर में रूपोश्री है, हर घर में सबुज साथी है, हर घर में जॉय बांग्ला है, हर घर में आज हम जानते हैं कि द्वारे सरकार है। तो इसी तरह की सरकार की हमें जरूरत थी और हमने चुना। तो आज हम यहाँ पर क्यों हैं, सवाल ये भी खड़ा होता है। चूंकि ममता बनर्जी इस बार फिर से इलेक्शन लड़ रही हैं, तो ये हम अपील करेंगे, चूंकि आज एक पॉलिटिकल फोरम नहीं है, हम में से कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हम एक आम जनता बनकर हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मेरा भी फाउंडेशन है, बुम्बादा है, उनका ह्यूमन राइट्स है, हमारे गुरुजी हैं, उनका भी संस्था चलता है, हमारे अकरम भाई, फरीद भाई, और यहाँ के जितने भी लोग हैं, हम सब कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और हम सब से अपील करते हैं कि ममता बनर्जी को सिर्फ आपको जिताना नहीं है, वो तो जीत ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हमें एक पैगाम देना है, हमें पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम देना है कि देखिए ममता बनर्जी को लोग, बंगाल के लोग सिर्फ अपने आसपास नहीं ढूंढते, बल्कि उनको अपने दिल में जगह देकर रखते हैं। और ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं भाजपा की कमर टूट जाए, मोदी जी की कमर टूट जाए, मतलब उनका जो शासन है, उनका जो अहंकार है वो टूट जाए, ताकि आम जनता, आज इस देश में जिस तरह से आम जनता डीजल, पेट्रोल, महंगाई, जितने भी बेरोजगारी, इसकी जो मार आज हम जो जूझ रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, या किसी भी तरीके से जिस तरह से भाजपा ने 7 सालों में पूरी रीढ़ तोड़ दी है, जीडीपी का गिर जाना, इन सारी चीजों को अगर हमें लड़ने के लिए कोई अगर अपोजिशन विपक्ष का एक अच्छा चेहरा अगर हम देख पाते हैं, हम जानते हैं कि ऑलरेडी विपक्ष में जो है कांग्रेस में आपके राहुल गांधी थे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है नाकाम होती हुई दिखी है। तो अगर कोई दूसरा विकल्प है मोदी जी के सामने खड़े होने के लिए, तो वो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और उनको सामने रखने के लिए 2024 में रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आज हम उनको भारी मतों से, बहुत ज्यादा भारी मतों से जो है भवानीपुर से उनको विजय करें। और यही हमारी अपील है। और भी ज्यादा यहाँ पर वक्ता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस मैं आपको यही याद दिलाना चाहती हूँ, आपको याद रखना है कि आपको ममता बनर्जी को क्यों जिताना है, क्योंकि ममता बनर्जी ने काम किया है, विकास किया है, रूपोश्री दिया है, कन्याश्री दिया है, जॉय बांग्ला दिया है, द्वारा सरकार दिया है, स्वास्थ्य साथी दिया है, बंगाल में खुल के सांस लेने के लिए एक जिंदगी दी है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा, चूंकि मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि आज 2 बजे रात को भी अगर मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे किसी तरह का कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं और उनके शासन में जितनी भी महिलाएं हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो इसीलिए मैं अपील करूंगी, जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कि आप लोग जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं जहाँ पर जो वो वोट कर सकते हैं, आप लोग घर में तूफान आए, आंधी आए, आपको जाना है और आपको वोट करना है। जय हिंद, जय बांग्ला। ধন্যবাদ। আমাদের বক্তব্য রাখছিলেন সুফিয়া খান।
আমাদের মধ্যে আছেন অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান জনাব ফরিদ খান সাহেব। আমি জনাব ফরিদ খান সাহেবকে বলবো কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। धन्यवाद। आज हम लोग बंगाल की बहुत सारी नॉन पॉलिटिकल एनजीओ की तरफ से आप लोगों के सामने एक अपील लेकर आए हैं। वो अपील ये है ममता बनर्जी के लिए। हालांकि ममता बनर्जी की जीत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। ममता बनर्जी ऑलरेडी जीती हुई है, भारी मतों से जीत रही है। सिर्फ हम अपने समुदाय की तरफ से उनको एक ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि पूरा बंगाल आपके साथ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो सॉलिडारिटी पेश करने के लिए हम उनके सामने हाजिर हैं, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी हमारे पूरे बंगाल को देखती हैं, बंगाल में वो सबको जिस निगाह से, एक ही निगाह से देखती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई। जिस तरह से आज हमारे इस मंच पर श्री बुम्बा मुखर्जी जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन चलाते हैं, उनके नेतृत्व में हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं श्री भिकू महाराज जी, जो बौद्ध धर्मगुरु के बंगाल के चीफ हैं, हमारी बहन सुफिया खान यहाँ पर मौजूद है, फ्रूट्स एसोसिएशन और बंगाल के मेंबर श्री मोहम्मद अकरम जी यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहन अंजना मंतोष जसनानी जी जो कैथोलिक एसोसिएशन ऑफ बंगाल की प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, अलवी खान साहिबा जो मदर टेरेसा फाउंडेशन की बंगाल की वुमेन की चेयरमैन है, वो यहाँ मौजूद है, गुरुचरण सरल जी जो सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ मौजूद है। यहाँ हम तमाम समुदाय के लोग, तमाम चिंता भावना के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग बंगाल के सामने एक अपनी तरफ से अपील रखना चाहते हैं और ममता बनर्जी को ये बताना चाहते हैं और अपने बंगाल वासियों को ये बताना चाहते हैं कि ममता बनर्जी की जीत तो निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हम आपकी जीत में शामिल होने के लिए आपसे कंधे से कंधा मिलाकर हर कौम के लोग आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने हमें चैन की नींद सोने का मौका दिया है। बंगाल में हर समुदाय के लोग चैन की नींद सोते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो। जिस तरह से सूफिया जी बता रही थी, एक महीना होकर रात को वो 2 बजे कहीं पर भी चली जाए तो अपने आप को वो महफूज समझती है। चाहे वो इंजीनियर जी हो जो एक क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखती है, लेकिन वो अपने आप को यहाँ पर सेफ फील करती है। चाहे वो सरल जी हो, सिख समुदाय से हैं, चाहे वो बुम्बा जी हो, चाहे वो हमारे भिक्कू महाराज जी। बंगाल में हर इंसान निश्चित है, आराम से सो रहा है। जैसा कि सर बता रहे थे भिक्कू महाराज कि 100% खुशियाँ तो किसी को नहीं मिलती हैं, 100% सेटिस्फेक्शन तो किसी को नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो 90% भी है तो हम दूसरे गुजरातियों से ज़्यादा यहाँ पर खुश हैं। उत्तर प्रदेश से हम ज़्यादा यहाँ खुश हैं, हम सेफ हैं। इसलिए मेरी एक हम सबकी मिली जुली एक चिंता भावना है कि बंगाल में हम लोग खुश हैं। ममता बनर्जी को जिताने के लिए हम सब एक साथ हैं, हर समुदाय के लोग एक साथ हैं। और अगर ममता बनर्जी भारी मतों से यहाँ जीतती है, उन्हें जो हम स्वाभिमान हमारा बरकरार रखने के लिए हमको ममता बनर्जी को जिताना है। हमारे बीच हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री मोहन रॉय जी भी मौजूद हैं और तमाम समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग बहुत से लोगों का नाम नहीं ले रहे, सिख समुदाय से हमारे पास बहुत से लोग आए हुए हैं, सिंधी समुदाय से जसनानी जी भी मौजूद है, बहुत से लोग मौजूद हैं और बहुत से लोग अपनी बातें रखेंगे। मैं अपनी इस बात को यही बोलकर ख़त्म करूँगा कि ममता बनर्जी किसी के एहसान की मोहताज नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप में एक जो नेत्री है, जो पूरे देश का नेतृत्व देना चाहती है और दे सकती है। हमें वैसी ही नेत्री बंगाल के लिए और वैसी ही नेत्री हमारे देश के लिए चाहिए। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हर चीज़ को भुलाकर, मनभेद भुलाकर, मतभेद भुलाकर, जाति पाति भुलाकर ममता बनर्जी को वोट देने के लिए हमको सामने आना चाहिए। बस यही निवेदन करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। नमस्कार। ধন্যবাদ ফরিদ ভাইকে। এবার আমাদের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন এলজিলা মন্টোস জসনানি। উনি আমাদের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের। ওনাকে আমি সামনে একটু এগিয়ে আসতে বলবো, বক্তব্য রাখবেন। বললে তো দিলে ভালো হতো।
Good afternoon to everybody here. Thank you, Govardhan, for having organized this, and Farid Bhai. Yes, I agree with Sophia. We are here to seek blessings from all of us here for our Chief Minister. She has won the elections. There's no doubt about that. But all we are here to do is request everybody from the Bhawanipur constituency. I am blessed to be a voter. I'm going to vote my Chief Minister. That's the pride we have in Bhawanipur, that we are going to vote for our Chief Minister. So this is our request to everybody. And what she has done does not to be explained. Everybody in this room, sometime or the other, has felt that goodness that she has done in Bengal. Our association is a 112-year-old association, the oldest in the country, and one of the oldest in the country, yes we are, and in Bengal we are the only association of the Catholic Association. For so many years, I don't think you've heard about the association, right Dada? Have you heard? No. For some time that Didi is here, we are allowed to exercise our, exercise ourselves. We can explain ourselves. We are not scared to come out and speak and talk, and we are all equal. She says you're all equal, and she's, as Sophia said, from our association, we have helped 450 plus children every year to get educational funds from the government. And you see, for us ladies, Sophia and myself seem to be the only ladies here, except for one lady there. Didi insists that ladies should come forward, ladies should be brought forward, ladies should be equal. And we are so grateful to her, as this is the oldest association in the country and I'm the first lady president. So I feel so proud to be here with Didi. And as I said, my name is Bengal, Angelina Mantosh Justani. My mother is Bengali, father is a Christian, my husband is a Hindu or Sindhi. And I don't feel scared to live here. This is what Didi is shown, that we are all one. Well, the community, our Christian community, has given to India in education. Everybody wants a Christian missionary school for their child to go. Be it in the medical line, all the nurses, the Nightingales are all Christians. But what we were told, that we need to prove ourselves to live in India. We were really scared at one time when we were told that we need to prove our lineage to live in India. But Didi fought for us. She stood by us, and we are very grateful to her for this. And we are all here to just say one thing to you with our hands folded. Please keep Didi in your prayers. I don't think there are many Bhawanipur voters here, but we request you to phone your friends, your relatives who live in this area, and just take 2 minutes to walk into the voting, give your vote, and that's a blessing that you're giving to the Chief Minister for what she's giving to us. Thank you very much, Bhumada Farid Bhai, for having me here. Our deepest condolences on your mother's death, and you're still here to give your support to Didi. Thank you very much. अब मैं सरदार गुरुचरण तरली से रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 मिनट के लिए कुछ करें, क्योंकि हम लोग का वक्त खत्म हो रहा है, 3:30 तक का टाइम है, तो 2 शब्द हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उम्बा जी को और फरीद जी को और सरन जो ने यहाँ पे आमंत्रित किया, बुलाया है। सो बोलने के लिए तो सबने सब कुछ बोल ही दिया है और कुछ बाकी नहीं रहा बोलने के लिए, पर एक अपील जरूर करेंगे आपके माध्यम से कि दीदी ने जो काम किया है वो बोलता है, वो दिखता है। सामने जो 30 तारीख को इलेक्शंस जो आ रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इलेक्शंस हैं उनके लिए, और ये इलेक्शन बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चलिए वोट नहीं भी करेंगे तो दीदी जीत चुकी है, पर नहीं, आपको घर से निकलना है और आपको वोट करना है और एक ह्यूज मार्जिन से उनको जिताना है, क्योंकि एक एक वोट उनके लिए 2024 में उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये सारे नेशनल लीडर्स जो बैठे हैं जहाँ पे भी हैं, उनकी निगाहें दीदी के ऊपर में है और इस इलेक्शंस के ऊपर में है, क्योंकि बंगाल ने प्रूव किया है इस विधानसभा में, क्योंकि जब सबने सबने सोच लिया था कि गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो वो अकेली लड़ी थी
उनके नाम पे पब्लिक ने दोनों हाथ खोल के वोट दिए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है जो उनके लिए, वो जीत तो चुकी हैं पर उनको एक ह्यूज मार्जिन से जिताना है ताकि ये मैसेज जाए सारी जगह पे और वो आने वाले 2024 में वो इंडिया को एक नई दिशा दिखाए और इस कंट्री को लीड कर सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। আরো কিছু জানা থাকলে আপনারা জানতে পারেন। দাদা এখন আপনি বললেন যে আমাদের এখানে তো কোনো পার্টি থেকে যুক্ত নেই, কিন্তু আমরা দেখি বেশিরভাগ সব পার্টি থেকে না ডাইরেক্টলি ইনভলভ দুজন না, এই 1 2 3 না 3 করে বলেন, ডাইরেক্টলি কোনো মাইনরিটি থেকে ফরিদ খান এবং সবিয়া খান। দেখুন নূর ভাই, এখানে একটা মানুষ আছে যে নিরপেক্ষ, একটা মানুষ আছে আমাদের যিনি ভোট দেবেন, তিনি কাউকে না কোনো পার্টিকে তো ভোট দেবেন। তো সুতরাং কেউ যদি বলতে আমরা পলিটিক্সের সাথে একদম যুক্ত নেই, তাহলে ভোট আমি যখন ভোট দিতে যাবো যাকে ভালো লাগে তাকে দেবো, তো নিশ্চয়ই আমি কোনো একটা পার্টিকে কোনো একটা ব্যক্তিকে সাপোর্ট করছি, তো সেটা হতে পারে। अच्छा बिकुदा, कल एक प्रार्थी भवानीपुर का प्रार्थी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया, आपने जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सर्वधर्म को लेके, उन्होंने बोला कि यहाँ पर अधिकतर भाग लोग दिल्ली का पार्टी ऑफिस हरीश चटर्जी में बैठा रहता है, वही लोग यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। दीदी का पुलिस सेक्रेटरी का ऑफिस किधर, अभी तक मैंने नहीं जानती हूँ भाई। पुलिस सेक्रेटरी का ऑफिस में मैंने कभी नहीं किया और हमारे साथ जितना धर्मगुरु था एक भी नहीं किया था। हम लोग अपना मर्जी से उनका ग्रेटिट्यूड देने के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आज भी उस पर रहा था। हम लोग का कहने का मतलब है आप लोग को बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल बेनिफिट मिलता है। हम लोग एक साथ में है, इधर क्रिश्चियन है, इधर सिख है, इधर हिंदू मुस्लिम है, इधर हिंदू है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, ये तो मेरा असली बेनिफिट है। अच्छा, ये तो असली बेनिफिट है भाई। सोफिया खान जी ने बोला कि मैं रात में अकेली निकलती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन पार्टी स्ट्रीट का घटना जो हुआ था वो सभी लोगों ने देखा, उससे किसी से छुपा नहीं है। एक महिला रात में निकली, उसका बलात्कार हुआ। देखिए पहले ही गुरुजी बोल चुके हैं कि 100% कुछ भी सेफ नहीं होता। अगर मान लीजिए आप कंपेयर करिए, अगर हम तुलना करते हैं, अगर एक आध केस हो ही सकता है, वो भी घटे हुए आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गया है लगभग, तो मुझे नहीं लगता कि उस केस को लेकर हम ओवरऑल पूरे कलकत्ते को हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि एक सेंसस के हिसाब से कोलकाता इज द मोस्ट सेफेस्ट मेट्रो ऑफ दिस कंट्री। ये जवाब है मेरा। এবারে বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিপেওয়াল গতকাল বিজেপি রাজ্য নির্বাচন কমিশনে গিয়ে অভিযোগ করেছে যে তাদেরকে সেখানে প্রচার করতে দেওয়া হয়নি, তাদেরকে পুলিশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন? প্রচারে বাধা পাচ্ছে কাকে বলছেন? আমি বলতে বলো, আমি আমাদের ব্যাপার নয়। দেখুন এটা তো আমরা এর মধ্যে নেই, ইলেকশন কমিশন আছে, ইলেকশন কমিশন যা বলছে ইলেকশন কমিশন হিসাবে চলছে। ওনারা গেছিলেন ওই এলাকাতে যে যে জায়গা পারমিশন ছিল, ওরা ওইদিকে যাওয়ার পারমিশন ছিল, ওরা যে দিদির বাড়ি থেকে যেতে চাইছে ওখানকার পারমিশন ছিল না, যে ডিসি বলেছে, সেজন্য উইদাউট পারমিশন গেলে তো পুলিশ বাধা দেবে। আর ওদের তো কাজ সবসময় এটাই, কিভাবে ঝামেলা পাকানো যায়, ঝামেলা পাকিয়ে পুরো ভারতবর্ষকে দেখানো যায় এখানে এই প্রবলেমটা হচ্ছে, কিন্তু ওরা তো নিজেই ইলেকশন কমিশন রুল মানছে না। আমি দেখেছি তৃণমূল পার্টির লোকরা যতই আছে, যদি একটা জায়গা বলছে 50 লোকের মিটিং থেকে বেশি হবে না, আমি 46 লোক থেকে বেশি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওনারা 100 জন নিয়ে চলে যাচ্ছে। নিয়ম তো ওনারা ভাঙছে, কিন্তু যাই হোক এটা ইলেকশন কমিশন ব্যাপার, ইলেকশন कमीशन। अच्छा बुम्बदा, मेरा सवाल है आपसे कि वोट के बाद हिंसा हुआ, ठीक है ना, किसी भी मानव अधिकार को देखा नहीं गया वहाँ पर, ठीक है, मुस्लिम समुदाय की दुकान बन गई, लेकिन मुस्लिम समाज वहाँ पर खड़ा नहीं था। हमको तो जितना पता है कि लेकिन चर्चा भी पूरा देश में हुआ, सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को दिखाई दिया तो बंगाल में इलेक्शन का बाद। हर जगह से सिर्फ कॉम्प्लेन ही किया था, हर कोई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कॉम्प्लेन दे रहा था, अब पूरा देश का ह्यूमन राइट्स पूरा बंगाल में आ गया था। ये प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन दीदी का तो कुछ किया हुआ नहीं था, आप लोग तो नहीं थे वहाँ पर, आप लोग तो सामने जिन्होंने कॉम्प्लेन किया था तो एक राजनीतिक पार्टी का तरफ से कॉम्प्लेन किया गया था। सोफिया खान जी से एक सवाल है हमारा। जी बोलिए। सोफिया खान जी, ये सवाल है, अभी आपने कहा कि दीदी जीती जाएंगी,
लेकिन नंदीग्राम में देखा गया कि वही कॉन्फिडेंस था सबको और वो हार गए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नंदीग्राम में जो हुआ है वो हम सबसे छुपा नहीं है। नंदीग्राम में ऑलरेडी दीदी जीत चुकी थी, लेकिन अचानक 1 घंटे के बाद फिर से आता है कि वो सिर्फ मात्र 1000 वोट से हार जाते हैं। तो इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है ये तो मीडिया वाले ही बताएंगे। और दूसरी बात है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि 200 से ऊपर जो हम बहुमत से जीते हैं, वो जितने भी कैंडिडेट भले क्यों ना हो, लेकिन हर एक वोट जो है, हर एक वोट दीदी को देख कर दिया गया है। तो आप एक हार को पकड़ेंगे या 200 सीट जो जीती है दीदी उसको गिनेंगे? मुझे लगता है आप जितने भी मीडिया है आपको ऑनेस्टली ये सोचना चाहिए कि जितनी भी सीटें वो दीदी ने जीती है। क्या आपको ये नहीं लगता कि एक वोट कीमती है यहाँ पे? जी बिल्कुल, जैसा फरीद भाई ने कहा, अंजना जी ने कहा कि एक वोट इसलिए भी कीमती है क्योंकि हम हमारे हिसाब से दीदी ऑलरेडी जीत रही हैं। लेकिन चूंकि ये एक मैसेज जाना है पूरे हिंदुस्तान में कि देखो कि दीदी को इतने लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं, ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं। 2 मई को ऑलरेडी दीदी ये प्रूव कर चुकी है कि पूरे बंगाल की जनता उनको बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा सम्मान करती है और उनको सिर्फ बंगाल का चेहरा नहीं बल्कि एक नेशनल लीडर के तौर पर देखना चाहती है। और ये ऑलरेडी ये प्रूफ दीदी कर चुकी है। और अभी एक वोट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारी मतों से सिर्फ जिताना नहीं है, जीत तो रही है दीदी, लेकिन भारी मतों से इसलिए भी जिताना है ताकि बाहर में जितने भी लोग, विपक्ष के लोग जो बैठे हैं, वो लोग भी ये उनका लोहा मानने पर मजबूर हो जाएं कि अगर विपक्ष का एक अच्छा चेहरा अगर कोई है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है तो वो केवल माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर जीतने के लिए? कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस? जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। तभी तो हम लोग यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम एक वोट मांगे, हम इसलिए यहाँ बैठे ताकि लोगों को ये अपील करें कि वो लोग घरों में ना बैठे। हमें पता है कि लोग जो ये भी सोच लेते हैं कि दीदी तो ऐसे ही जीत रही हैं, बहुत लोग के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि दीदी तो बिल्कुल जीत रही हैं। तो ये सोच कर अगर कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर कोई इंसान चाहता भी है कि वो दीदी जीते, लेकिन अगर वो घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, वोट नहीं करेगा, तो दीदी कैसे जीतेंगी? दीदी को जिताना ही नहीं है बल्कि भारी मतों से जिताना है ताकि एक भी ऐसा वोट है जो नेटो में ना जाए, एक भी वोट जो है वो वेस्ट ना जाए। बस यही हम अपील करने के लिए जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी यहाँ पर गैर राजनीतिक संगठन हैं, यहाँ इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए हैं, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, मिलकर हम अपील करना चाहते हैं। किसी ने पूछा कि यहाँ पे कई लोग पॉलिटिकल लोग भी हैं। अरे पॉलिटिकल लोग हैं तो इसका मतलब क्या हम सोशल वर्कर नहीं है? जैसे मेरी पहचान एक सोशल वर्कर के जैसे ज्यादा है। मैंने पार्टी करने से पहले मुझे एक समाज सेविका के जैसा जाना जाता था। मैं आज भी एक समाज सेविका हूँ। मैं पार्टी भी करती हूँ और मैं समाज सेवा भी करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि तृणमूल पार्टी जो है वो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक पार्टी करती हैं, वो उसके साथ साथ वो सोशल वर्क करती हैं, तो हम सब पार्टी वर्कर के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं और सारे लोग यहाँ पर बस अपील करना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि আমরা প্রেস বিবৃতি দিয়েছি আপনাকে। एक सवाल है कि नंदीग्राम जैसा अगर यहाँ खेला कर दिया एक सीट पे तो क्या करेंगे आप? देखिए ज़्यादा पॉलिटिक्स वाला बात हम कर नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो नॉन पॉलिटिक्स का बात यहाँ पे करेंगे? हम सोफिया दी को ही आप फरीद भाई को बोलेंगे। फरीद भाई को दीजिए थोड़ा सा मुझे। पॉलिटिकल बात का वो चर्चा आपकी। नंदीग्राम का जो एक खेला बीजेपी ने कर दिया, आपने 200 से ऊपर खेला जो है टीएमसी ने किया, एक सीट पे खेला कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर यही भवानीपुर में अगर ये खेला भारतीय हमको अपनी जनता पे, बंगाल की जनता पे पूरा विश्वास है। वो मोदी जी कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन वो सबका विनाश करने में लगे। हमें अपनी दीदी पर और हमारी भवानीपुर की जनता, बंगाल की जनता पर पूरा विश्वास है। जनता जनार्दन होती है, जनता जो वोट देगी वो हमारे सर माथे पर। हमें पूरा यकीन है कि जनता, बंगाल की जनता हमारे साथ है, दीदी के साथ है। और हम विनाश की राजनीति नहीं करते हैं, असल में विकास की राजनीति हम लोग करते हैं। और खेला क्या होगा नहीं करना, हम तो जनता जो खेला होगी करेगी वो हमारे सर माथे पर। मेरा एक सवाल है कि माइनॉरिटी तबातोड़ एकदम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जा रही है, विपुल जी लगातार एकदम बैठते हुए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बुम्बा मुखर्जी ये माइनॉरिटी है क्या? बुम्बा मुखर्जी माइनॉरिटी है? उत्तम महाराज ये माइनॉरिटी था, हिंदू था ना? ये तो हर आदमी तो माइनॉरिटी नहीं है ना। एक संप्रदाय मेजॉरिटी है, से संप्रदाय माइनॉरिटी है, तो से संप्रदाय का आदमी तो ज्यादा होगा भाई।
एक ये बुम्बा मुखा ये तो हिंदू है ना, ये तो मेजोरिटी है भाई, हम लोग माइनॉरिटी है, लेकिन उत्तर बंध महाराष्ट्र तो मेजोरिटी था, रामकृष्ण मिशन का था, तो आप माइनॉरिटी की एक बात बोल रहे हैं। हमने बोला कि माइनॉरिटी दवा तो क्यों मैं इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ? क्या माइनॉरिटी कहाँ का? माइनॉरिटी समाज के लोग इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको क्या बोला? We are seeking the intervention of the Lord, of God, of Allah, of Guru on our Chief Minister who has helped us so much. We are not doing as a minority, we are doing as a citizen of the city of joy. This is the city of joy and we are here seeking blessings from everybody for our Chief Minister. सवाल कीजिए, बहस मत कीजिए, यहाँ से सवाल ले लीजिए आप। जी मेरा ये सवाल है कि कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो सेक्युलर पार्टी है, तमाम धर्म को एक साथ लेकर चलती है, मगर हाल ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1000 लड़कियों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया क्योंकि उन्होंने अपने फोटो में हिजाब लगाया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। हम लोग ना पॉलिटिकल बात करने आए हैं, हम लोग लोगों से मिलकर अपील करने आए हैं, और वो जो भी चीज़ हुई सब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, तो ये सवाल हम लोग के लिए जायज़ नहीं। थैंक यू। नहीं, ऐसे कोई बात है तो आप माइनॉरिटी कमीशन में लिखिए, हम लोग कोशिश करूँगा। থ্যাংক ইউ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন খিদিরপুর ওয়েলফেয়ার সোসাইটির চেয়ারম্যান আমাদের সফিউদ্দিন সাহেব পজুদা, ধন্যবাদ জানাই আসার জন্য ওনাকে। टाइम का भाई टाइम हो गया।